Hi, my dear students. Welcome to Mathstan. Today, we will be continuing the same marathon series for Paper 2 Biology. So, please take out your notebooks and let's get started. So, the question number one for today is 85th. That is, a biotechnology company develops a recombinant therapeutic protein using CHO, Chinese hamster ovary cells, instead of E. coli. Which statements justify this choice? CHO cells perform proper glycosylation of proteins. CHO cells produce proteins with mammalian post translational modifications. CHO cells grow faster than bacteria in all conditions. Many therapeutic proteins require mammalian processing for full biological activity. Which of the following statement is correct? For this, you should have a quick idea. Basically, yes, about the CHO cells. Okay, so CHO cells are Chinese hamster ovary cells, which are used for the therapeutic proteins. As a therapeutic proteins like monoclonal antibodies, you have erythropoietin, you have clotting factors, okay, because they carry out the mammalian post translational modifications, especially the one which is your glycosylation. Okay, so that is the first thing. Secondly, E. coli lacks the machinery for the complex glycosylation, so it's better we use what? Yes, we use CHO and many other mammalian post translational modifications. So that is why E. coli is not that suitable for making the for many of the therapeutic proteins. I hope this is clear. All right. So CHO cells also they do not grow, very faster than bacteria. Okay, they don't grow very faster than bacteria. So if they don't grow faster than bacteria, then what is it? If they don't grow faster than the bacterial cultures, they typically divide in minutes to hours. Okay, whereas the CHO cells they require much longer time period. So here statement 1, 2 and 4 are correct. This is not correct. CHO cells require faster. They grow faster? No, they grow slower. So this one is not right. Okay, let's have a look here with the next one. The next question is regarding the monoclonal antibodies. So have a look. Monoclonal antibodies, okay, regarding monoclonal antibodies which are produced by hybridoma technology, which of the following statements are correct? PEG promotes fusion of B lymphocytes with myeloma cells. HAT medium that selectively, yes, that selectively allows the unfused myeloma cells to survive. HGPRT deficient myeloma cells, they cannot survive in HAT medium. Hybridoma cells possess unlimited growth and antibody secretion. So we have to see each of the point in detail. Okay, so when I talk about the PEG, okay, when I talk about the PEG, we need to understand here very well that it is about what? My dear students, it is about what? So have a look here. Whenever we talk about this one, that is your regarding the monoclonal antibodies, okay, we need to understand that this part which is referred to as PEG. Okay, this PEG part promotes the fusion of what? PEG promotes the fusion of, yes, it promotes the fusion of B lymphocytes, okay, with myeloma cells. So the statement is correct. PEG is polyethylene glycol. So first one is correct. HAT medium selectively allows the unfused myeloma cells to survive? No. HAT is the medium that comprises of hypoxanthine, aminopterin and thymidine. So this HAT medium includes an element that is your aminopterin. This aminopterin, what does it do? It blocks the de novo pathway of nucleotide synthesis. So cells must use the salvage pathway here, and salvage pathway requires which enzyme? HGPRT.
Okay, so myeloma cells are usually HGPRT deficient, so they cannot survive in the HAT medium. Only hybridoma cells can survive because they inherit the immortality from the myeloma cells, and HGPRT also from the B cells. Check the next one. HGPRT deficient myeloma cells cannot survive in HAT medium. That's correct, I told you. Hybridoma cells possess unlimited growth and antibody secretion. Yes, because of hybridomas combine immortality from the myeloma cell specific antibody production for B lymphocyte. So the second one is not right, and 1, 2 and 3 are correct. Check the next one, my dear students. Okay, so when we talk about the next part, we need to understand, yes, the PEG is actually promoting the fusion only. PEG promotes the fusion of beta lymphocytes. A is correct. B is not correct. Okay, why B is not correct? Because they die. They are having the limited lifespan. But on the contrary, HGPRT deficient myeloma cells, they cannot survive in HAT medium. So C is correct. And the hybridoma cells, they also possess the abilities, that is, they possess the unlimited growth and antibody secretion. So that is also correct. Okay, now let's have a check on the next question. 1 second. Okay, fine. So we have, all right. Now the next question is, ELISA can detect both antigen and antibody. Okay, so this is about the ELISA, which says that can detect both antigen and antibody. Second one is that different ELISA formats utilizes the enzyme labeled antibodies to identify the human immune complexes. So ELISA दोनों एंटीजन एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर सकता है. Yes, क्यों? बिकॉज लगा कर देखो, because different ELISA formats utilize करते हैं enzyme labeled antibodies to identify the immune complexes. So both of the statements are true and they correctly explain the statement A also. So this is correct. Check the next question. इनमें से कौन सी वैक्सीन है? Okay, so have a look here. Which vaccine is least likely to induce strong cytotoxic T cell responses? DNA vaccine, live attenuated vaccine, mRNA vaccine, purified protein subunit vaccine. तो इनमें से कौन सी है वैक्सीन जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइटोटॉक्सिक टी सेल्स रिस्पॉन्सेज को इंड्यूस करके देती है? सो द फर्स्ट वन, इफ़ आई टॉक अबाउट दिस वन, दैट इज़ योर डीएनए वैक्सीन. सेकेंड आता है लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन. देन आता है एमआरएनए वैक्सीन. फिर आता है प्यूरिफाइड प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन. ठीक है, सो इनमें से कौन सा वैक्सीन है? देखो, जो सबसे पहला डीएनए वैक्सीन है ना, तो ये एंटर करता है इनसाइड द होस्ट. ठीक है, और ये एक्सप्रेस करता है कैसे? इट एक्सप्रेसेस इंटरसेलुलरली. ओके, इट एक्सप्रेसेस इंटरसेलुलरली. फाइन. सेकेंड थिंग इज दैट अबाउट इट इज दैट एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं MHC क्लास 1 के ऊपर. स्ट्रॉन्ग CTL रिस्पॉन्स होता है डीएनए वैक्सीन्स का. ठीक है, कमिंग अप टू द नेक्स्ट वन विच इज लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन. लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन कौन सी है? यहाँ पर पैथोजन इनसाइड द होस्ट सेल्स रेप्लिकेट करते हैं. एंटीजेंस जो होते हैं वो MHC क्लास 1 में ही प्रेजेंट होंगे. नेक्स्ट देखो mRNA वैक्सीन. माय डियर स्टूडेंट्स, mRNA वैक्सीन जो होती है वो क्या करेगी? mRNA वैक्सीन जो होगी दैट इज ट्रांसलेटेड इनसाइड द होस्ट सेल, और एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं MHC क्लास 1 में. स्ट्रॉन्ग CTL रिस्पॉन्स इसका भी प्रेजेंट होता है. फाइनली आता है आपका प्यूरिफाइड प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन. तो ये तो बहुत ज़्यादा अंडरस्टूड सी चीज़ है कि ये नहीं है. ठीक है, ये नहीं है. क्यों नहीं है? क्यों नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स? द रीज़न बिकम्स हेयर इज़ दैट कि इसमें सिर्फ प्यूरिफाइड एंटीजन प्रोटीन्स होते हैं. एंटीजन्स आर टेकन अप फ्रॉम आउटसाइड द सेल एंड दे मे बी प्रेजेंट मेनली थ्रू द MHC क्लास 2. ठीक है, और ये प्राइमरली स्टिमुलेट करते हैं हेल्पर टी सेल को, जिसको हम CD4+ बोलते हैं, और एंटीबॉडी ह्यूमरल रिस्पॉन्स भी क्रिएट करते हैं. सो लीस्ट इफेक्टिव होते हैं एट इंड्यूसिंग द साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, दैट इज CD8 रिस्पॉन्स को. सो दैट मीन्स लीस्ट सबसे ज़्यादा बेकार बोल सकते हैं जो इसका इफेक्ट है, लीस्ट टॉक्सिक जो इफेक्ट करता है यहाँ पर, वो है आपका साइटोटॉक्सिक टी सेल रिस्पॉन्सेज का प्यूरिफाइड प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन. नेक्स्ट वन देखते हैं. विच मॉलिक्यूल फंक्शन एज वैक्सीन एडजुवेंट? alum, CpG oligonucleotides, MF59, lipopolysaccharide, that is clinical vaccine.
सो इनमें से कौन सा है मॉलिक्यूल जो कि वैक्सीन एडजुवेंट की तरह काम करता है? एलम तो आपको पता ही है, ये एलम सॉल्ट्स होते हैं एल्यूमिनियम के। ठीक है, सो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, जब मैं बात कर रही हूँ ना इसकी एलम की, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वैक्सीन एडजुवेंट्स क्या है यहाँ पर। देखो, एलम ओल्डेस्ट और सबसे पुराना वैक्सीन एडजुवेंट है जो यूज़ किया जाता है पर्टिकुलरली। ठीक है, टॉकिंग अबाउट दी एलम। सो दिस इज़ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइडली वैक्सीन जो एडजुवेंट यूज़ किया जाता है। सेकेंड देखो, सीपीजी ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, ये सिंथेटिक अनमिथाइलेटेड सीपीजी डीएनए मोटिव्स होते हैं और ये भी करेक्ट है। M5F59 ये सीक्वेंस, ये क्या है? ये स्क्वालेंस बेस्ड ऑयल होता है इन वाटर एमल्शन। ये रिक्रूटमेंट और एक्टिवेशन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का इंक्रीज कर लेता है। जो आपकी इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन होती है ना, उसमें काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लिपोपॉलीसेकेराइड जो है एलपीएस, ये नहीं यूज़ होगा। पोटेंट इम्यून स्टिमुलेट है ये हाईली टॉक्सिक होता है, फीवर और सेप्टिक शॉक दे सकता है, तो इसको क्लिनिकली हम वैक्सीन एडजुवेंट की तरह नहीं बोल सकते हैं। इंस्टेड इसी का ही एक वर्जन आता है आपके पास, दैट इज़ योर MPL, मोनोफॉस्फोराइल लिपिड ए, उसको आप यूज़ कर सकते हो, इसको यूज़ बिल्कुल नहीं कर सकते। चेक द नेक्स्ट वन। रिवर्स vaccinology begins with the genome analysis. Protective antigens can be predicted through bioinformatics before laboratory validation. So here the statement is reverse vaccinology जो है वो genome analysis के साथ start होती है। सही है या गलत है? It is absolutely correct my dear students. क्यों? क्योंकि रिवर्स वैक्सीनोलॉजी जो है वो सीक्वेंसिंग एनालाइजिंग द इंटायर जीनोम ऑफ द पैथोजन से स्टार्ट होती है रादर देन फर्स्ट कल्चरिंग द ऑर्गेनिज्म और आइसोलेटिंग इट्स प्रोटीन्स। सो जीनोम इज स्क्रीन्ड to identify the genes encoding the potential vaccine antigens. So that is the correct statement. Second statement देखो, protective antigens can be predicted through bioinformatics before laboratory validation. So bioinformatic tools are used to predict surface exposed proteins, secreted proteins, conserved proteins, antigenic proteins. So these predicted candidates are then experimentally validated in the laboratory. फिर immunogenicity उसकी चेक की जाती है, प्रोटेक्टिव एफिकेसी को चेक किया जाता है। ठीक है, सो बोथ आर ट्रू एंड जो आर है वो करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है स्टेटमेंट ए को। ओके, सो दिस इज करेक्ट। नाउ लेट्स हैव अ लुक हियर। Which diagnostic technique provides absolute quantification of nucleic acid without a standard curve? बिना एक स्टैंडर्ड कर्व के कन्वेंशनल PCR, रियल टाइम PCR, डिजिटल PCR और नेस्टेड PCR, वी नीड टू डिफाइन ईच ऑफ देम ऑल्सो। ओके, सो कौन सी टेक्निक है जो क्वांटिफिकेशन करने में हेल्प करती है न्यूक्लिक एसिड की बिना किसी स्टैंडर्ड कर्व के? सो माय डियर स्टूडेंट्स, कन्वेंशनल पीसीआर तो डिटेक्ट करती है कि कोई चीज़ प्रेजेंट है या एब्सेंट है, मतलब किसकी? डीएनए टारगेट करती है सीक्वेंस का। तो इसका जो आउटपुट होता है एंड पॉइंट एम्पलीफिकेशन होती है विच इज़ विजुअलाइज्ड ऑन द एग्रोस शेल। क्वांटिफिकेशन होती है इसकी? नहीं, ये क्वांटिटेटिव नहीं है। लेट अस टॉक अबाउट द रियल पीसीआर। रियल टाइम पीसीआर जो होता है ये डिटेक्ट करता है, क्वांटिफाई करता है डीएनए को ड्यूरिंग द एम्पलीफिकेशन, और ये फ्लोरोसेंट डाइज या प्रोब्स की फॉर्म में ये यूज़ होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ आउटपुट की, तो यहाँ पर साइकिल थ्रेशोल्ड चलता है। गेटिंग माई पॉइंट? कमिंग टू योर डिजिटल पीसीआर। डिजिटल पीसीआर क्या करता है? एब्सोल्यूट क्वांटिफिकेशन करता है डीएनए की। ठीक है, तो एग्जैक्ट कॉपी नंबर आपको नहीं मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट? सो करेक्ट आंसर क्या होगा? अच्छा, नेस्टेड वाला भी देख लो। नेस्टेड वाला इंप्रूव करता है स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी को। 2 सक्सेसिव राउंड्स पीसीआर के यूज़ करता है ये विद सेट्स ऑफ प्राइमर, तो ये भी क्वांटिटेटिव नहीं है। सो द रियल आंसर इज योर डिजिटल पीसीआर। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज योर करेक्ट आंसर। Check the next one. Advantages of real-time PCR include quantification of DNA, closed tube detection, reduced contamination risk, या requirement of gel electrophoresis after amplification. So अगर आपने रियल टाइम PCR अच्छे से पढ़ा है तो you can get a good idea about this. Very good. Very good, my dear students. So what will be the correct one? That is your quantification. Okay.
दैट इज योर क्वांटिफिकेशन ऑफ डीएनए। होता है क्वांटिफिकेशन ऑफ डीएनए? वेरी गुड, होता है क्वांटिफिकेशन ऑफ डीएनए। ओके, सो हैव अ लुक हियर माय डियर स्टूडेंट। जब मैं बात करती हूँ डीएनए के क्वांटिफिकेशन की, तो हाँ, रियल टाइम पीसीआर, जिसे आप क्यूपीसीआर बोलते हो, वो क्या करता है? वो मेजर करता है। क्या मेजर करता है? फ्लोरेसेंस को ड्यूरिंग हर एक पीसीआर साइकिल में, जिसकी वजह से क्वांटिफिकेशन हो जाती है इनिशियल डीएनए की और आरएनए टेम्पलेट की। स्टेटमेंट 2 देखो, क्लोज्ड ट्यूब डिटेक्शन करता है। क्लोज ट्यूब डिटेक्शन बिल्कुल करता है क्लोज ट्यूब डिटेक्शन, ठीक है। एम्पलीफिकेशन और डिटेक्शन जो होती है सेम सील्ड ट्यूब में होती है। कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको टू, नो नीड टू ओपन दैट द ट्यूब आफ्टर पीसीआर। तो आप हैंडलिंग को मिनिमाइज कर सकते हो बेसिकली। Okay, then coming to the third one, reduced contamination risk. Since the tube remains closed after amplification, तो amplicon contamination का risk कम होता है compared to the normal जो conventional PCR है। उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की रिक्वायरमेंट होती है एम्पलीफिकेशन के बाद। ये आपको किसने बता दिया? ये तो होता ही नहीं है। Getting my point? This is not required. सो वन ऑफ द मेजर एडवांटेज तो यही है कि यहाँ पर रियल टाइम पीसीआर में यही है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जनरली ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। एम्पलीफिकेशन मॉनिटर होती है रियल टाइम यूजिंग द फ्लोरेसेंट डाइज, जैसे SYBG ग्रीन हो गया, प्रोब्स हो गए, टैकमैन हो गया। सो ABC इज द करेक्ट ऑप्शन। Let's have a look here with the next question. That is, Western blot confirms HIV infection. Western blot detects antibodies against individual HIV proteins. Which statement is correct here? Very good. कौन सा स्टेटमेंट सही लग रहा है हमें? सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स वेरी ऑब्वियस कि जो वेस्टर्न ब्लॉट है वो HIV इन्फेक्शन को कंफर्म करता है। विद नो डाउट, येस इट डज। ओके, सेकेंड, वेस्टर्न ब्लॉट डिटेक्ट करता है एंटीबॉडीज को अगेंस्ट इंडिविजुअल HIV प्रोटीन्स। यस, बिकॉज HIV प्रोटीन्स जो है पहले सेपरेट होते हैं बाय SGS फेज से, ठीक है। फिर वो ट्रांसफर किए जाते हैं मेम्ब्रेन में, पेशेंट का सीरम ऐड किया जाता है। जैसे ही पेशेंट का सीरम ऐड कर दिया तो एंटीबॉडीज अगर प्रेजेंट होंगी तो वो बाइंड कर जाएंगी वायरल प्रोटीन के साथ और बैंड्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो आप इजीली डिटेक्ट भी कर सकते हो। सो बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड दे आर करेक्टली एक्सप्लेनिंग द स्टेटमेंट A ऑल्सो। Which marker is most commonly used to identify regulatory T cells? CD4 plus, CD25 plus, FOXP3 plus, CD8 plus, CD28 plus, CD19 plus, CD56 plus. So, कौन सा कॉमनली यूज होता है आइडेंटिफाई करने के लिए रेगुलेटरी टी सेल्स को? दैट इज द क्वेश्चन। वेरी गुड। सो माय डियर स्टूडेंट, CD4 प्लस, CD25 प्लस और FOXP3 प्लस, ये रेगुलेटरी टी सेल्स, ट्रैक्स बोलते हैं इन्हें हम। स्पेशलाइज सब यूनिट्स होते हैं टी लिम्फोसाइट्स के और सप्रेस करते हैं एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्सेज को और मेंटेन करते हैं सेल्फ टॉलरेंस। देयरफॉर बाय ये प्रिवेंट भी करते हैं किसको? ऑटो इम्यून डिजीजेस को। सो द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर A. आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियर। CD8 प्लस नहीं, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल के लिए यूज होता है। CD28 कोस्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल है, टी सेल्स पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। CD19 प्लस बी सेल मार्कर है। CD56 प्लस नेचुरल किलर है, ये सेल मार्कर है, ठीक है। सो दैट इज द वन सच थिंग। चेक द नेक्स्ट वन। Which techniques are commonly employed for strain identification? MLST, whole genome sequencing, PFGE, gram staining alone. We also need to have a look at the full forms. So, इनमें से कौन सा है जो कॉमनली स्ट्रेन आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्प करता है? माय डियर स्टूडेंट्स, पहला आता है आपका MLST। MLST क्या होता है? MLST होता है आपका मल्टीलोकस सीक्वेंस टाइपिंग, ठीक है। सीक्वेंसिंग इंटरनल फ्रेगमेंट्स ऑफ द सेवरल, यूजुअली 6 से 8 हाउसकीपिंग जीन्स होते हैं इसमें। होल जीनोम सीक्वेंसिंग, PFGE क्या होता है? पल्स्ड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का पार्ट है। दैट इज योर पल्स्ड
field gel electrophoresis. Then comes your gram staining alone. So correct answer is your MLST, your whole genome sequencing, and PFGE. Okay, A, B, and C are the correct options. Got my point? All right, now let's have a look here at the next part, that is so the next question is about assertion and reason, and already it is very evident that the answer is marked, but more important is to get the concept out of it, right? So the question states that multiplex PCR permits simultaneous amplification of multiple targets. Reason: multiple primer pairs are included in a single reaction mixture. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो मल्टीप्लेक्स पीसीआर है वो परमिट करता है साइमल्टेनियस एम्पलीफिकेशन होती रहे अलग अलग टारगेट्स की, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और जो मल्टीपल प्राइमर्स हैं वो पेयर्स जो हैं उनके वो इंक्लूडेड होते हैं सेम सिंगल रिएक्शन मिक्सचर में। सो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और अगर यहाँ पर आप बिकॉज लगाकर चेक करेंगे यू वुड डेफिनेटली फाइंड दैट इट इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन ऑल्सो। चेक द नेक्स्ट वन, इनमें से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि प्लेसेंटा के अक्रॉस पहले ट्रांसफर करता है? आईजीए जो है एंटीबॉडी वो म्यूकोसल के साथ एसोसिएट करती है माय डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट एंटीबॉडी जो है वो आईजीएम है, मैक्सिमम जो होती है वो आईजीजी होती है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज मैंने लिख के बता दी हैं। और आईजीई जो है वो कहीं ना कहीं एलर्जी के साथ एसोसिएट करता है, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शंस जितनी भी होती है ना, तो ये वर्क करता है उसके केस में। सो आईजीजी मैक्सिमम होती है बॉडी में, और मैक्सिमम होने के साथ साथ इसका एक फंक्शन और रहता है विच इज़ अबाउट दी यस दैट ये सबसे पहले ट्रांसफर होती है प्लेसेंटा के अक्रॉस। ओके, अब यहाँ देखते हैं एक बारी, जस्ट अ सेकेंड। रिगार्डिंग द mRNA vaccine, they require host ribosomes, they integrate into the host genome, lipid nanoparticles facilitate the delivery, and they induce both humoral and cell immunity also. ठीक है, सो दैट इज वन पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट। तो जो आपका mRNA वैक्सीन्स हैं उसके रिगार्डिंग हम पता करने की कोशिश करते हैं कि इनमें से कौन सा वाला जो है वो करेक्ट है। सो इनको होस्ट के राइबोसोम चाहिए होते हैं, द आंसर इज येस दे नीडेड। सेकेंड, दे इंटीग्रेट इनटू होस्ट जीनोम, माय डियर स्टूडेंट्स यही इनकी फीचर है एक सबसे ज़्यादा डिफ्रेंशिएटिंग, कि ये नहीं इंटीग्रेट करते होस्ट के जीनोम के साथ। और जो लिपिड नैनो पार्टिकल्स हैं वो फैसिलिटेट करते हैं डिलीवरी को, बिल्कुल हाँ करते हैं। एंड दे इंड्यूस बोथ ह्यूमोरल एंड सेल इम्यूनिटी ऑल्सो, सो दैट इज डी इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, सो लेट अस हैव अ लुक हियर। यस, फ्लो साइटोमेट्री को हम यूज करते हैं इम्यूनोफिनोटाइप करने के लिए ल्यूकीमास को। ल्यूकीमास ही नहीं, और भी जितने आपके हैं उनके लिए हम यूज करते हैं फ्लो साइटोमेट्री को, ठीक है। और फ्लोरोसेंट लेबल एंटीबॉडीज को भी हम यूज करते हैं। देखो, फ्लो साइटोमेट्री एक लेजर बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो कि एनालाइज करती है थाउजेंड्स ऑफ सिंगल सेल्स को विद इन पर सेकेंड्स, ठीक है, एज द जैसे जैसे वो फ्लो करते रहते हैं फ्लूइड स्ट्रीम में। तो मेजर करती है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे साइज हो गया, ग्रेनुलैरिटी हो गई, है ना, इन सब चीज़ों को ये क्या करते हैं, नोटिस करते हैं। सो रीज़न है कि फ्लोरोसेंट लेबल्ड एंटीबॉडीज रिकॉग्नाइज करती है सेल सरफेस के एंटीजन्स को। सो माय डियर स्टूडेंट्स, द स्टेटमेंट इज एक्चुअली वेरी मच करेक्ट। स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है, ठीक है। चलो, सो हियर अगर मैं आंसर की बात करूँ तो बोथ आर ट्रू एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन द assertion, सो दिस इज द राइट। ओके, चेक करते हैं ये वाला, कौन सी मॉलिक्यूलर टेक्निक है जो कि मोस्ट सूटेबल है क्या डिटेक्ट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? I hope you're understanding these things. So the correct answer is here. Which molecular technique is most suitable? सबसे ज़्यादा suitable कौन सी है SNP के लिए, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म के लिए? सर्दर्न ब्लॉट है, आर्म्स पीसीआर है, नॉर्दर्न ब्लॉट है, एसडीएच फेज है। तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है दैट इट इज़ एसोसिएटेड विद द आर्म्स पीसीआर, ठीक है। सो दिस इज वन सच रीजन।
ओके, सो लेट अस हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें मल्टीपल करेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी गुड। So the correct one goes up here as which biomarkers are routinely used in cancer immunodiagnostics. सो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, कौन से बायोमार्कर्स को हम यूज़ करते हैं कैंसर इम्यूनो डायग्नोस्टिक्स के लिए? PSA, CA-125, AFP, हीमोग्लोबिन। शाबाश। देखो, हीमोग्लोबिन ब्लड टेस्ट करके तो नहीं पता चलता, बायोमार्कर की तरह काम नहीं करता है, तो दिस इज वेरी राइट। ठीक है, क्या है एक्चुअल इसमें? दैट इज योर PSA, CA-125 एंड AFP। ठीक है, सो इन तीनों को हम यूज करते हैं कैंसर इम्यूनो डायग्नोस्टिक के लिए, डायग्नोसिस के लिए। हीमोग्लोबिन कैन नॉट वर्क इन दैट वे। Check this one. Polymerase chain reaction, which is PCR, is preferred over culture for early viral diagnosis. PCR amplifies viral nucleic acids even when the viral load is very low. तो फिर PCR जो है वो प्रेफर किया जाता है ओवर द कल्चर फॉर अर्ली वायरल डायग्नोसिस। दैट इज ट्रू, यस इट इज ट्रू। पीसीआर एम्पलीफाई करता है वायरल न्यूक्लिक एसिड्स को इवन व्हेन क्या होता है, इवन जब वायरल लोड बहुत कम हो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, द आंसर इज यस। सो नाउ अब यहाँ चेक करें बिकॉज लगाकर वेदर इट सूट्स वेल और नॉट। पीसीआर प्रेफर किया जाता है कल्चर के ओवर फॉर अर्ली वायरल डायग्नोसिस क्योंकि पीसीआर एम्पलीफाई करता है वायरल न्यूक्लिक एसिड्स को इवन जब वायरल लोड बहुत ज़्यादा कम हो। सो बोथ द स्टेटमेंट्स जो हैं दे आर ट्रू एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट ए। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बारी। इन डायग्नोस्टिक टेक्निक्स में कौन सा है जो हाईएस्ट रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है फॉर ट्रैकिंग द आउटब्रेक्स ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस? सो अगर आपको हाईएस्ट रेजोल्यूशन देखनी है यहाँ पर ट्रैक करने के लिए कि बैक्टीरियल पैथोजेंस के आउटब्रेक्स को, तो आप क्या यूज़ करोगे? ग्राम स्टेनिंग, स्टीरोटाइपिंग यूज़ करोगे, या फिर होल जीनोम सीक्वेंसेस, या फिर बायोकेमिकल टेस्टिंग? क्या यूज़ करेंगे हम इसमें? शाबाश। वी बेसिकली यूज हेयर, हाँ यहाँ पर हम यूज करते हैं होल जीनोम सीक्वेंसिंग। क्या यूज करते हैं? होल जीनोम सीक्वेंसिंग। सो कौन सी डायग्नोस्टिक टेक्निक सबसे ज्यादा रेजोल्यूशन प्रोवाइड करती है? दैट इज योर होल जीनोम सीक्वेंसिंग। So you should have an idea about what is whole genome sequencing. So my dear students, when it comes to this part, you have to be careful that whole genome sequencing जो होती है एक मॉलिक्यूलर टेक्निक होती है। बेसिकली ये डिटरमिन करती है कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस को एक पूरे के पूरे जीनोम में। तो इसमें प्रिंसिपल क्या है इसका? आप डीएनए को एक्सट्रैक्ट करो सैंपल से, डीएनए को फ्रेगमेंट करो छोटे छोटे पीसेस में, और जो फ्रेगमेंट्स है उनको सीक्वेंस करो हाई कर, मतलब हाई थ्रू आउट सीक्वेंसिंग प्लेटफॉर्म्स में, जैसे इल्यूमिना हो गया, ऑक्सफोर्ड नैनोपोर हो गया, पैक बायो हो गया। इससे आप करोगे और फिर बायो इन्फॉर्मेटिक टूल जो है वो असेंबल कर देगा सारे के सारे सीक्वेंसिंग को और आपके कंपेयर कर देगा रेफरेंस जीनोम के साथ। तो रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। ओके, चेक करो नेक्स्ट वन। ये क्वेश्चन मुझे तो ऐसे है कि जब आप ब्लड पढ़ रहे हो, जब आप इम्यून सिस्टम पढ़ रहे हो, इम्यूनिटी पढ़ रहे हो, तो दिस बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। Okay, this becomes an important part. That is कि ड्यूरिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या इंक्लूड करते हैं? डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस, बी लिम्फोसाइट्स, या फिर न्यूट्रोफिल्स? ओके, सो द करेक्ट आंसर इज योर ए, बी एंड सी। दैट इज डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस, बी सेल्स। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो प्रोफेशनली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स नहीं एक्ट करते ड्यूरिंग एनी अदर इम्यून रिस्पॉन्स। Check the next one. Monoclonal antibodies have revolutionized the targeted cancer therapy. Okay. And reason is that they specifically bind tumor associated antigens while minimizing damage to normal tissues. So
ये असर्शन क्या है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज रेवोल्यूशनाइज करती हैं टारगेटेड कैंसर थेरेपी को, एंड सेकेंड इज दैट दे स्पेसिफिकली बाइंड ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजेंस while minimizing the damage to normal tissues. So my dear students, the correct answer is A. दोनों सही हैं, लेकिन अब बात ये है कि क्या ये करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है इसको? That is a point. So, my dear students, the answer is yes, it does. So, monoclonal antibodies have revolutionized the targeted cancer therapy because they specifically bind tumor associated antigens while minimizing the damage to normal tissues. Okay. So, here both are true and R explains the A very well. So, the first statement is correct. Check the next one. Regarding monoclonal antibodies produced by hybridoma technology, which of the following statements are correct? PEG promotes fusion of B lymphocytes with myeloma cells. HAT medium selectively allows unfused myeloma cells to survive. HGPRT deficient myeloma cells cannot survive in HAT medium. Or hybridoma cells, they possess unlimited growth and antibody secretion. Very good. Which one seems to be correct? Very good, my dear students. Which one seems to be correct? So regarding the monoclonal antibodies, yes, जो आपका पेग है वो प्रमोट करता है फ्यूजन बी लिम्फोसाइट की माइलोमा सेल्स के साथ, यही तो होता है हाइब्रिडोमा में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। हैट मीडियम सेलेक्टिवली, यहाँ हैट मीडियम नहीं यूज होता। ठीक है, that allows you unused nahi, no. HGPRT deficient myeloma cells cannot survive in HAD medium, yes, क्योंकि उनके पास yes HGPRT deficiency तो होनी ही नहीं चाहिए, that is a necessary condition myeloma cells के लिए वो survive करे और myeloma cells फिर B lymphocytes के साथ क्या करे, फ्यूज करे और फिर क्या करे, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुल बनाए। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी possess unlimited growth and antibody secretion, that's correct, that is the reason why are we approaching towards the monoclonal antibodies by means of the hybridoma. So that is again important. Check this question. ELISA can detect both antigen and antibody. Different ELISA formats utilize enzyme-labeled antibodies to identify the immune complexes. So the statement is both are true and R is the correct explanation. Okay, next check करते हैं यहाँ पर कौन सी वैक्सीन है। ये कुछ मिलता मिलता क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है। कौन सी वैक्सीन है? प्यूरिफाइड प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन नहीं है, जो कि लीस्ट लाइकली है कि वो इंड्यूस करे साइटोटॉक्सिक टी रिस्पॉन्स को, बाकी फिर भी आपके कर देते हैं। एलम, MF9559 एंड लिपोपॉलीसेक्राइड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए मैं आपको थोड़े नेक्स्ट टॉपिक पे ले चलती हूँ अभी with the next one that is about, just a second my dear students। चलिए अब आप यहां पर मुझे बताएं, यस, टोटिपोटेंसी बेसिस है प्लांट के टिश्यू कल्चर के लिए, हाँ कि ना? बेसिक तो है। टोटिपोटेंसी एबिलिटी होती है कि कोई भी सेल जो है वो क्या करे, वो डेवलप करे, डिवाइड करे और एक नया पूरा प्लांट बना दे। Every living plant cell possesses the genetic information which is required to regenerate an entire plant under suitable conditions. So, the statement is correct or not? हर एक लिविंग प्लांट सेल जो है वो पोजेस करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो कि रिक्वायर्ड होती है एक नया एंटायर प्लांट बनाने के लिए अंडर द सूटेबल कंडीशंस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, द ऑप्शन yes, so totipotency भी सही है and R is also the correct one. That means if you consider it in this way कि totipotency is the basis of the plant tissue culture because every living plant cell possesses the genetic information required to regenerate an entire plant under suitable conditions. The answer would be A. Yes, it is correct. कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो प्राइमरली इंड्यूस करता है शूट फॉर्मेशन को ड्यूरिंग द माइक्रो प्रोपगेशन? ऑक्सिन, साइटोकिनिन, जिब्रेलिन या इथाइलिन? which basically induces the shoot formation. क्या करता है शूट को? साइटोकाइनिन। ऑक्सिन किसको करता है? माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बार बार ही कहती हूँ कि अगर प्लांट्स में अगर हार्मोन्स में कुछ इंपॉर्टेंट है ना, तो ये वाले हार्मोन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ओके, जैसे ऑक्सिन जो है वो रूट की डेवलपमेंट करता है, ठीक है। जैसे आपका साइटोकाइनिन है ये शूट की डेवलपमेंट करता है। जैसे आपका जिब्रेलिन है,
ठीक है, जैसे आपका इथाइलिन है तो बेसिकली शूट के लिए होता है साइटोकाइनिन। अगर ऑक्सिन ज्यादा हो, साइटोकाइनिन कम हो एक मिक्सचर में, तो ऑक्सिन्स की वजह से ग्रो करेगा रूट, और अगर साइटोकाइनिन ज्यादा हो ऑक्सिन्स के मुकाबले तो क्या होगा, शूट ग्रो करेगा। चलो, मुर्शीग एंड स्कूग का जो एमएस मीडियम है उसमें क्या होता है टिपिकली, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो होते हैं, वाइटामिन होते हैं, या फिर इसमें अगार होता है। व्हाट डज दैट इंक्लूड? ओके, now coming to Mushik and Skoog medium that typically contains macro, micro, vitamins, agar. Very good. So Mushik and Skoog medium typically contains macronutrients भी होते हैं, micro भी होते हैं, vitamins भी होते हैं और agar भी होता है। तो I can say that all of these things are present. Okay. Okay. All right. So let's have a look here. Now, coming to the next one, that is your assertion and reason. Soma clonal variation can be beneficial in the plant breeding. Reason, it generates novel genetic variability among regenerated plants. Very good. Very good. So, soma clonal variation can be beneficial? Yes, that can be beneficial. Why? Because it will generate what? Because it is going to generate the novel genetic variability among the regenerated plants. So this can be helpful at the same time. So the correct answer is both A and B are true, and R is the correct explanation of the A. Check the next one. The most suitable explant for producing virus-free plants. अगर आपको सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा अच्छा कोई एक्सप्लांट लेना है वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए, तो आप क्या यूज़ करोगे? आप मैच्योर लीफ यूज़ करोगे, रूट कॉर्टेक्स यूज़ करोगे, सैम यूज़ करोगे? ठीक है, ये सैम क्या है? शूट एपिकल मेरिस्टम, या फिर आप स्टेम बाक यूज़ करोगे? तो आपको कौन सा लगता है सबसे ज़्यादा सूटेबल अगर कोई है तो कौन सा एक्सप्लांट है? वेरी गुड. Very good, my dear students. So the correct one is your shoot apical meristem, which is the most suitable one because यहाँ पर मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी भी बहुत हाई होती है, और वायरस फ्री प्लांट्स बनाने के लिए सैम से अच्छा ऑप्शन कोई नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि कुछ लेटेंट वायरसेस भी होते हैं ना, तो वो मैच्योर लीफ में, रूट के कॉर्टेक्स में, स्टेम के बार्क में इजीली छुप के बैठते हैं। तो जब बॉडी के अंदर जाएंगे या न्यू प्लांट ग्रो होता होगा, जब उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होंगे, तब वो परसिस्ट करके शो करता है अपने आप को। तो हम हमेशा वो वाला लेंगे विच वर्क्स वेल। ओके, ऑल राइट, चेक द नेक्स्ट वन. एप्लीकेशन ऑफ एंथर कल्चर इंक्लूड. एंथर कल्चर क्या इंक्लूड करेगा प्रोडक्शन? वेरी गुड. एंथर कल्चर क्या इंट्रोड्यूस करेगा? माय डियर स्टूडेंट्स, एंथर कल्चर इंक्लूड करता है कौन सी एप्लीकेशंस? प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड प्लांट्स, डेवलपमेंट ऑफ डबल हैप्लॉइड्स, रैपिड प्रोडक्शन ऑफ होमोजाइगस लाइन्स और वेजिटेटिव प्रोपगेशन ओनली. वेरी गुड. वेरी गुड. सो ये बनाता है आपके हैप्लॉइड प्लांट्स भी, डेवलपमेंट करता है डबल्ड हैप्लॉइड्स की भी, और ये रैपिड प्रोडक्शन करता है होमोजाइगस लाइन की भी। तो सिर्फ वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए नहीं होता। अगर सिर्फ यहाँ लिखा होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो ठीक था, बट यहाँ ओनली लिखा हुआ है, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट जो है पूरी की पूरी गलत हो जाती है। सो ओनली वाली चीज़ों से बच के रहा करो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बारी. एम्ब्रियो रेस्क्यू जो होता है वो यूजफुल है इन ओवरकमिंग पोस्ट जाइगोटिक इनकम्पैटिबिलिटी. ठीक है, और इट अलोज द इमेच्योर एम्ब्रियोज टू डेवलप इनटू आर्टिफिशियल कल्चर बिफोर एबॉर्शन. ध्यान से देखेंगे एक बारी. वेरी गुड.
Very good, my dear students. Very good. What is the correct one? So, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, वी विल कम टू नो दैट एम्ब्रियो रेस्क्यू यूजफुल है, बिल्कुल यूजफुल है। पोस्ट जाइगोटिक इनकम्पैटिबिलिटी ना हो, इसीलिए अगर आप एम्ब्रियोस रेस्क्यू करते हैं तो दैट्स अ गुड पार्ट। ठीक है। सेकेंड क्या आता है यहाँ पर? यहाँ पर क्या आता है सेकेंड वन? यहाँ पर सेकेंड वन इज माय डियर स्टूडेंट्स कि ये इमेच्योर एम्ब्रियो को डेवलप करने में हेल्प करता है। सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बिल्कुल सही है। अभी आगे देखो, तो क्या ये इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है अच्छे से? इज इट एबल टू एक्सप्लेन इट वेल? वेरी गुड। यस, इट कैन कर पा रहा है। ओके, बिकॉज इट अलोज immature yes embryos to develop into artificial culture before abortion. नेक्स्ट चेक करते हैं कौन सा बैक्टीरिया है जो वाइडली यूज होता है एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन पता है क्या होता है? एनी आइडिया अबाउट व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? वेरी गुड। वेरी गुड। So, my dear, we need to understand one thing very carefully, and that is your transformation is the process of uptake of the genetic information or the genetic material, basically like DNA. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कौन सा बैक्टीरिया सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं? वी हैव ई कोलाई, दैट इज एशेरिचिया कोलाई, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस, बैसिलस सबटिलिस और राइजोबियम लेग्यूमिनोसारम। शाबाश। What it will include? So we need to understand here also. यहाँ पर भी हमको समझना है यहाँ पर yes that when we are talking about the yes it is going to be agrobacterium mediated means agrobacterium tumefaciens, right? So this one goes to be the correct option. Check the next one. TI प्लाज्मिड क्या कंटेन करता है? TI प्लाज्मिड tDNA कंटेन करता है, विर जीन्स कंटेन करता है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन करेगा, या फिर ह्यूमन इंसुलिन जीन को नेचुरली क्या करता है? यस, कंटेन करता है। शाबाश। व्हाट डज इट इंक्लूड? व्हाट डज इट इंक्लूड? एवरीवन हरी अप। हरी अप माय डियर स्टूडेंट्स। So when I talk about the TI plasmid, so TI plasmid क्या इंक्लूड करता है? TI plasmid इंक्लूड करता है tDNA भी, इसके पास विर जीन्स भी होते हैं, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन भी होता है। ह्यूमन इंसुलिन जीन नेचुरली नहीं, इसमें नेचुरली नहीं है, आप इंसर्ट जरूर करवा सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे, विच इज अबाउट द assertion एंड रीजन अगैन। पार्टिकल bombardment is suitable. Particle bombardment is suitable for transforming monocot plants. Reason: monocots are generally less susceptible to agrobacterium mediated transformation. So, both are true or not? Very good. So, my dear students, particle bombardment जो होती है that is suitable for transferring yes, बिल्कुल सही है, that is suitable with no doubt. क्यों? बिकॉज जो मोनोकॉट्स हैं वो जनरली लेस सस्पेक्टेबल होते हैं टू एग्रोबैक्टीरिया मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन. सो बोथ आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए वेरी वेल. Okay, so this is also correct. Check the next one. The selectable marker gene NPT1, NPT2 confers resistance to.
किसके लिए रेजिस्टेंस शो करते हैं? शाबाश, वेरी गुड। किसके लिए शो करते हैं? हाइड्रोमाइसिन के लिए, कैनामाइसिन के लिए, एम्पिसिलिन के लिए, क्लोरमफेनिकोल के लिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज कैनामाइसिन। ठीक है, NTP2 जो है वो कैनामाइसिन के लिए रेजिस्टेंट है और ये सेलेक्टेबल मार्कर जीन है। ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर जीन क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया आपको, बिकॉज दे अल्टीमेटली हेल्प टू आइडेंटिफाई कि किसने अपटेक किया, किसने अपटेक नहीं किया, कौन से बैक्टीरियाज में अपटेक हुआ और कौन से में नहीं हुआ। दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक हियर विद द नेक्स्ट पार्ट। एडवांटेजेस क्या है ट्रांसजेनिक प्लांट्स की? ट्रांसजेनिक प्लांट्स की एडवांटेजेस क्या हैं? शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स, टेल मी। सो द करेक्ट आंसर इज योर इंसेक्ट रेजिस्टेंट। हर्बिसाइड टॉलरेंस भी बना सकते हो, इनहांस कर सकते हो न्यूट्रिशनल क्वालिटी को भी, और एनवायरमेंटल रिस्क को भी एलिमिनेट कर सकते हो। कर सकते हो? नहीं कर सकते। एनवायरमेंटल रिस्क को तो आप नहीं मैनेज कर सकते, प्लांट्स में चेंजेस कर सकते हो। बीटी कॉटन जो है वो एक्सप्रेस करता है क्राई प्रोटीन्स को। क्राई प्रोटीन्स जो होते हैं वो पोर्स बना देते हैं मिडगट एपिथेलियल सेल्स में, इंसेक्ट्स के, सस्पेक्टेबल इंसेक्ट्स जो भी है उनके लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। सो द करेक्ट आंसर, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स। सो बी यस, विद नो डाउट बीटी कॉटन एक्सप्रेस करता है क्राई प्रोटीन्स। हाँ करता है। क्राई प्रोटीन्स जो होते हैं ना, वो जो भी इंसेक्ट है उसके, सस्पेक्टेबल इंसेक्ट जो होगा उसके मिड गट में ना एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ठीक है, हाँ टाइप ऑफ सेल्स है, तो वो उसमें पोर्स कर देता है, तो फिर उनकी उस हिसाब से उसकी वजह से क्या हो रहा है, उनकी डेथ हो रही है। सो दे विल नॉट बी एबल टू इम्पैक्ट द बीटी कॉटन एक्चुअली। पहला कमर्शियली सक्सेसफुली ट्रांसजेनिक क्रॉप जो हमने कमर्शियली सक्सेसफुल बनाया वो कौन सा था? बीटी कॉटन था, या फिर गोल्ड ऑन राइस है विद विटामिन ए, फ्लेवर सेवर टोमेटो है, राउंड अप रेडी सोयाबीन है? विच इज द करेक्ट वन अकॉर्डिंग टू यू? शाबाश, वेरी गुड। ऑल राइट, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट जो पहला कमर्शियली सक्सेसफुल ट्रांसजेनिक क्रॉप था वो है आपका फ्लेवर सेवर टोमेटो। ठीक है, गोल्डन राइस तो रिसेंट वाला है ना? तो फ्लेवर सेवर टोमेटो सबसे पहला है। चलो, ट्रांसजेनिक एनिमल्स किसके लिए यूज होते हैं? वाई डू यू, हाउ डू यू यूज देम बेसिकली? शाबाश, सो ट्रांसजेनिक जो एनिमल्स होते हैं वो डिजीज मॉडल्स बनाने के लिए यूज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। थेरापेटिक अगर हमने प्रोटीन्स बनाने उसके लिए भी यूज हो सकते हैं, फंक्शनल जीनोम्स के लिए भी, और वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए भी। सो ऑल ऑफ द आर द करेक्ट वन। ठीक है, सारे जो है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ओके, एजर्शन देखो, नॉकआउट माइस वैल्यूएबल टूल्स हैं फंक्शनल जीनोमिक्स के लिए। देन स्पेसिफिक जीन्स कैन बी इनएक्टिवेटेड टू स्टडी देयर बायोलॉजिकल फंक्शन, सो बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, and both of them are correctly explaining the, like reason is correctly explaining the assertion also. ठीक है, have a look at the next one. Which genome editing system has revolutionized the production of transgenic organisms? Very good. So कौन सा genome editing system है my dear students? Very very common, that is your CRISPR-Cas9 कैस्केड सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कॉमनली यूज किया जाता है। ठीक है, RFLP से भी ज्यादा कॉमन है ये।
All right, check the next one. Application of genomics in agriculture include marker assisted selection, identification of QTLs, genomic selection, or precision breeding. Very good. Very good, my dear. Tell me. सो द करेक्ट आंसर इज ऑल। मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन भी चाहिए होती है अगर आपको जिनोमिक्स यूज मतलब अगर आपको एग्रीकल्चर में जिनोमिक्स यूज करना है, क्यूटीएल्स भी यूज होंगे, जिनोम प्रिसिशन सिलेक्शन, प्रिसीजन ब्रीडिंग, सब प्रोसेसेस यहाँ पर यूज हो रहे हैं। So, my dear students, we will keep this much for now and we'll be continuing the next part in next class. Till then, take care. Have a wonderful day ahead. Please look at how many got correct and wrong and what things you need to see more. Okay, so please have a look at those things nicely. The days are less and the things are more. So, take care. Have a good day. Bye.